हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 23। ये चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, डेवलपमेंट ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यानी देखा जाए तो भारत के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का विकास किस प्रकार हुआ है, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक यहाँ पर जो ज्योग्राफी के यानी भूगोल के चैप्टर में करेंगे। ये चैप्टर कई मायने में हर क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, इवन कि जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the most important here, manganese ore. Is very important here, manganese ore here. India's rank is the third in the production of the manganese ore in the world. There is an important point here. India's ranked third in the production of the manganese ore in the world. Next only the Russia and South Africa is the next year. Russia is the first and South Africa is the second, but third number is the India. And about a fourth of the total production of the India is exported. You know that there's an important point here. About a fourth of total production of India is exported here. Manganese ore is a form of important ingredient in the manufacture of iron and steel. It is also used to the manufacture of the dry batteries in the photography and leathers and match industries. There's important here, the match industry, the use of magnesium ore is here. About 85% of total manganese consumptions of the India use of the metallurgical industries. There's the most important point here, 85% total manganese consumption of the here India is a metallurgical industry here. But here distribution is the most important also. The distribution, there is distribution that important area of production are Odisha. There is important area of production are Odisha, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. Over 78% of total reserve of manganese ore of India occur in the belt stretching from Nagpur and Bandra is a district of Maharashtra to the Bhagalghat and the Chanandwara district of Madhya Pradesh. But these two states contribute only 12 to 14% of total production respectively here. The remaining 22% of reserve are distributed in Orissa, Karnataka, Gujarat, Rajasthan, Goa and Andhra Pradesh. There is a most important state here, the remaining 22% of reserve as a district, Orissa, Karnataka, Gujarat and Rajasthan, Goa and Andhra Pradesh. Orissa tops is the production of the manganese accounting for 37% of the total production of the country. Do you know that there is important here, production of the manganese accounting for 37% of the total production of the country. Its reserve are only 12% of total reserve of India. The important mining of this district are is the Sundargarh and the Rayagad is the Belogaris and Kanozar and Jaipur and Mayabhin. There is the most important state here. There is a found of 12% of total reserve of India here. In Karnataka, the deposits are located in the district of Sigamgoga is a Chitradurga and the Tumkur and Belaris. A small deposit are reported in Vijaypur and Chikkamagura and the Dharwad district. Karnataka is the second largest producer of manganese ore and accounting for 26% of countries as a total production.
It's account for 6.42% of country as a total reserve here. There is no important. It is accounts for a 6.41% of a country as a total reserve here. Andhra Pradesh is a significant producer of manganese ores and contributing about 8% of India as a total production here. So there is a service are the insignificant Goa, Jharkhand and Gujarat also have some deposit of manganese ores here. India ranked third is the production of manganese ore in the world. There is a most important point arrive in the box. There is a notable point. Note your notebook. There is a India ranked third in the production of manganese ore in the world. About 85% of total manganese is a consumption in India is used by the metallurgical industries. You know that there are metallurgical industries is a use of 85% of manganese here. The important area of production are is Odisha, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. There is a most important state here. There is important area production of the manganese here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है मैग्नीज अयस्क। देखिए मैग्नीज अयस्क जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में भारत का स्थान जो है विश्व स्तर पर रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा स्थान पे है। यानी देखा जाए तो भारत जो है मैग्नीज के उत्पादन में तीसरा नंबर पे आता है। उससे पहले प्रथम पे जो है रूस है, दूसरा जो है दक्षिण अफ्रीका है जहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और भारत भी किसी से पीछे नहीं, तीसरा स्थान भारत का भी है। भारत का सकल मैग्नीज अयस्क उत्पादन का लगभग 1/4 भाग जो है यहाँ से ही निर्यात किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत का सकल मैग्नीज अयस्क उत्पादन का लगभग 1/4 भाग यहाँ पर निर्यात किया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं लोहे एवं इस्पात के जो है निर्माण में मैग्नीज अयस्क एक महत्वपूर्ण अवयव है। मैग्नीज की उपयोगिता जो है शुष्क बैक्टीरिया और निर्माण में जो है फोटोग्राफी में, चमड़ा और माचिस उद्योगों में जो है महत्वपूर्ण होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। भारत में सकल मैग्नीज अयस्क के लगभग जो है 85% भाग जो है खपत जो है धातु कर्मी उद्योगों में ही हो रहा है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देखा जाए तो 85% भाग जो है खपत जो है धातु कर्मी उद्योग में हो रहा है, यानी सर्जिकल इंडस्ट्रीज में जो है इसका अधिक उपयोग हो रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके पश्चात वितरण की बात करें तो देखा जाए मैग्नीज का जो है वितरण स्वाभाविक रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। क्यों डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना जरूरी है कि भारत में किस किस पार्टों में जो है मैग्नीज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मैग्नीज उत्पादन में प्रमुख जो है क्षेत्र उड़ीसा, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैग्नीज उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का स्थान महत्वपूर्ण है। भारत का जो है 78% से ज़्यादा मैग्नीज अयस्क भंडार जो है महाराष्ट्र के नागपुर तथा भंडारा जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जो है बालघाट एवं जो है छिंदवाड़ा जिलों तक फैली पट्टियों में मिलते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ गया यहाँ पर कि भारत के 78% से ज़्यादा मैग्नीज अयस्क जो है भंडार महाराष्ट्र के नागपुर तथा भंडार जो जिलों से लेकर मध्य प्रदेश के बालघाट एवं छिंदवाड़ा जिले तक फैली जो है पट्टी में मिलते हैं। परंतु ये दोनों राज्य सकल उत्पादन में क्रमशः 12 व 14% का ही हिस्सा योगदान देते हैं। यानी देखा जाए तो पूरे भारत में जो है इनका हिस्सा 12 से 14% ही रह गया है। और शेष 22% मैग्नीज जो भंडार का जो वितरण है उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, गोवा एवं आंध्र प्रदेश के अंतर्गत व्यवस्थित निक्षोभों में आती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 22% जो है कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और गोवा के अंतर्गत आता है। उड़ीसा भारत में मैग्नीज अयस्क के जो है उत्पादन में शीर्ष पे है। तो ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ गया कि उड़ीसा भारत में जो है मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। और भारत के कुल उत्पादन का जो है 37% जो उत्पादन यहीं पे होता है। तो आप समझ सकते हो कि भारत के जो है प्रमुख मैग्नीज उत्पादन जो है उड़ीसा को ही माना जाता है और इस 37% उत्पादन करता है, जो कि कम नहीं है। इस राज्यों में जो है उपलब्ध मैग्नीज अयस्क के निक्षेपण भारत के कुल भंडार का यहाँ पर 12% होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाई गई है कि इस राज्य में उपलब्ध मैग्नीज जो अयस्क जो है निक्षेपण भारत के कुल भंडार का 12% है। यानी उड़ीसा जो है मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैग्नीज के प्रमुख खदानें जो है सुंदरगढ़, रायगढ़, बेलागीर
और केओछोर, जैजपुर और मयूरभंज जिलों में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैंगनीज के प्रमुख खदानों की यहाँ पर बात बताई गई है। कर्नाटक में मैंगनीज अयस्क के निक्षेपण जो है शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर और तथा बेल्लारी जिलों में है। और छूटपुट जो निक्षेपण जो है बीजापुर में भी देखने को मिल रहा है और चिकमंगलूर एवं धारवाड़ जिले में भी पाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विषय में बताया गया है। यद्यपि कर्नाटक में मैंगनीज अयस्क के भंडार काफ़ी कम है। देखा जाए तो कर्नाटक में मैंगनीज अयस्क के भंडार काफ़ी कम है और भारत के कुछ भंडार का जो है 6% है, यानी भारत कुल भंडार का 6% काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। फिर भी अयस्क का उत्पादन कर्नाटक में भारत के मैंगनीज उत्पादन का 26% होता है। तो ये काफ़ी महत्वता को यहाँ दर्शाया गया है कि अयस्क का उत्पादन कर्नाटक में भारत के मैंगनीज उत्पादन का 26% होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में मैंगनीज का उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 8% होता है, यानी आंध्र प्रदेश भी मैंगनीज उत्पादन के लिए काफ़ी अग्रसरणीय है, क्योंकि यहाँ पर भी देखा जाए तो भारत कुल उत्पादन का 8% भाग जो है आंध्र प्रदेश का ही योगदान है, जो काफ़ी अच्छा है। यद्यपि यहाँ मैंगनीज अयस्क के निक्षेपण काफ़ी कम है और गोवा, झारखंड एवं गुजरात में भी मैंगनीज अयस्क के निक्षेपण पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी आंध्र प्रदेश जो है अपनी महत्वता को यहाँ दर्शा रहा है कि यहाँ 8% जो है भारत कुल उत्पादन का यहाँ 8% भाग जो है उत्पादन होता है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है अपने स्थान पे। यदि यहाँ पर हम बात करें कि विश्व में मैंगनीज अयस्क के उत्पादन करने वाले देशों में भारत का जो स्थान है तीसरा है। देखिए ये पॉइंट जो है आपको नोट करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि विश्व में मैंगनीज अयस्क के जो उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान तीसरा स्थान पे यहाँ पर रखता है। मैंगनीज उत्पादन का जो है 85% जो है उपभोग देश के अंदर स्थापित धातुकर्मी उद्योग में हो रहा है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मैंगनीज उत्पादन का 85% उद्योग देश के अंदर स्थापित धातुकर्मी उद्योग में हो जाता है। उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र जो है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी देखा जाए तो ये 3 पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं हम इसको मैप के अंतर्गत कि मैप में जो है मैंगनीज का क्षेत्र कैसे दिखाया गया है। जब तक आप मैप नहीं दिखेगा तब तक समझ नहीं आएगा कि इसका जो है किस प्रकार जो है वितरण हुआ है। चलिए मैप को हम अध्ययन करेंगे, मैथ में जो है मैप में जाने कि इसमें क्या क्या और कहाँ पर कौन क्षेत्र को दर्शाया गया है। इस मैप में आप देख सकते हो जहाँ पर भारत के मैंगनीज क्षेत्र को दर्शाया गया है। तो देखा जाए तो यहाँ पर सबसे अच्छा क्षेत्र जो यहाँ कर्नाटक के साइड दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्र दिखे रहे हैं, गुजरात में भी दिख रहे हैं और राजस्थान के क्षेत्र में भी देखने को मिला है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है कि बीजापुर हो, धारवाड़ हो, बेल्लारी हो, जो है चित्रदुर्ग हो, शिवमोगा हो, तुमकुर हो या पणजी हो, ये सारे क्षेत्र में जो है यहाँ पर मैग्नीशियम के भंडार पाए गए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। साथ में अगर आप देखोगे तो इसमें कटक, बेलागीर, कोरापुर, श्रीकुकुम और मयूरभंज जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इन क्षेत्र में जो है सबसे अधिक मैग्नीज मिलते हैं। साथ में सुंदरगढ़ देखोगे, दुर्ग भी देखोगे तो इन क्षेत्रों में जो है काफ़ी मिलता है। और यहाँ तक कि आपको नागपुर, चितौड़बाड़ा ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। और साथ में गुजरात के कुछ स्थान पे भी आपको दिख रहा होगा कि मैग्नीज के क्षेत्र को दर्शाया गया है। इवन कि राजस्थान के क्षेत्र में भी ये आ रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर मैग्नीज के क्षेत्र को जो है बखूबी दर्शाया गया है और ये काफ़ी ज़रूरी है। कहते हैं ये मैग्नीज का क्षेत्र जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके
8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।